So, good morning, everyone. And now we will start the second class of this English in your entrance exam. So, how many of you are present? Shagun is present, Nandika, Dhruv, Khushi. Okay, these four students are present. If someone will want to join it, then they will join. Okay. So, yes, देखिए आज we will talk about the paper discussion. Okay, how the paper will come. What and we will also solve some questions. Okay, but first and foremost I just want to discuss about the syllabus. Let's see it. Let's see it how the and we will come to with the synonyms and antonyms. Okay, we will come to that. Nandika, today Nandika is there. How are you, Nandika? Dhruv? Okay, देखिए भाई. Let's see. आपको स्क्रीन खुशी विजिबल है एंड ऑल ओके? Yes, sir. All right. Let's see. This is your syllabus. Okay. You people are BCom. So let's see. The syllabus is basically the comprehension, है ना? Simple जो आपको पता है कुछ चीजें जैसे CVT में जो पढ़ा था. Okay. That is the complete syllabus. So you can say. आज पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे and we will discuss the things, right? Let's see. So in the English, we have a comprehension. Okay, you will have a comprehension, and then sentence labels, different paragraph and sentence label, identification of common errors. Okay, common errors. Yesterday we were discussing about the common errors. Okay, so you people were giving the answers that were most of the answers are correct. So that are the common errors. Okay, what can be the common errors that can be in the sentences? Okay, so you have to find out. Then there is a grammar and then uses. Okay, so in the grammar and uses इसमें काफी सारा लिखा है. ठीक है, लिखा छोटा सा है, but there is a lot of the things inside this grammar. Grammar, it means that all the parts of the speech, nouns, pronouns, adjective, adverb, okay, conjunctions, interjection, articles, all those subject matter that you studied in the CUT examination. Okay, so then after that, we have a vocabulary. In the vocabulary section, how the word formation takes place, how the synonyms and antonyms are there. Listen, and we will come to that point. Somebody is saying something. Okay, yes, group. Okay, good one. All right, Sajal, welcome. Okay, welcome. Let's see it. So whenever we talk about the synonyms, Pramod, these guys, let's wait for some seconds and others are joining. Let's wait for few seconds, 10 seconds or 1 minute. Set the timer. Okay, you should set the timer for the meeting. All right, so welcome to all, Pramod and Sajal, everyone. देखिए, so we are discussing the syllabus. Okay, then we will solve some questions. So basically this is the synonyms and antonyms. तो खुशी ने जैसे कि कहा कि भाई synonyms और antonyms को कैसे याद करें ना. तो देखो, एक तो आइडिया ये है कि whenever you talk about synonyms and antonyms, तो मैं बताता हूँ कि आपके पास यदि क्वेश्चन है, तो अगर आपके पास synonyms की बात करो ना, if you are talking about the synonyms, just a minute. ओके, सो सिनोनिम्स का जैसे कि खुशी, यदि सपोज आप वैसे तो एक वो जनरल है कि भाई यू पीपल शुड मेक अ हैबिट टू. नंदिका, क्या अभी भी कोई आएगा क्या? कल से 5 मिनट्स के अंदर ही आना है सबको. ठीक है, कल और क्लास है. बी पंक्चुअल है ना. सो ऑल राइट.
तो सिनोनिम्स का जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आया है ना, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी द अप्रोचेस। तो अप्रोच आप ये देख सकते हो, देखो या दो ऑप्शंस हो सकते हैं ना, या तो आपके पास वो चीज याद है आपको, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है उसको, सिनोनिम आपको याद है, आपको पता है कि हाँ भाई इसका पर्यायवाची शब्द ये वाला है, ठीक है, सेम मीनिंग है ना। सिनोनिम्स मीन्स वर्ड्स वर्ड्स विच हैव द सिमिलर मीनिंग, ओके, सेम मीनिंग यू कैन से। तो यदि आपने वो लर्न किया हुआ है, आपने वो पढ़ा है, तो आप उसको तो आंसर कर दोगे, राइट। बट अगर आपने वो सुना ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हो। तो उसमें देखो, उसमें ना आप ये हमेशा एक ना ऑप्शन एलिमिनेशन को ध्यान रखो, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे क्या हो सकता है, जैसे आपके पास जो भी, यू हैव अ सेट ऑफ 4 डिफरेंट आंसर्स, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप देखना कि आपको सिनोनिम्स पता करना है ना। तो सिनोनिम्स कुछ भी, मान लो यहाँ पर एक्स वर्ड है, ठीक है, एक्स का आपको सिनोनिम पता करना है। तो आप क्या करिए, इस एक्स के सिनोनिम पे ना, ये जो भी ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, ये आपके कुछ भी ए बी, ये आपके कुछ भी सपोज, ओके, पी क्यू आर एस वट एवर, कुछ भी आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आप क्या करिए, उस उन ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखो, और 3 आंसर्स में ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। कुछ भी मान लो दिया है, पी क्यू आर एस आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो आप इनमें ना कुछ रिलेशन फाइंड आउट करके देखो। और आप जैसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप ना किसी भी 3 उसको ना, आपको लगेगा कि यार ये जो 3 है ना, दे हैव द सिमिलर मीनिंग, समझे, इनका सेम मीनिंग जाएगा। तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट अगर 3 भी नहीं ना, तो आप स्टार्टिंग में 2 तो फाइंड आउट कर सकते हो, कि ठीक है, ये जो 2 ऑप्शंस हैं, ये 2 ऑप्शंस हमारे ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, तो अगर फिर आप थोड़ा सा और कोशिश करेंगे, तो उन दोनों में से भी ना जा करके आपको एक ऐसा मिल ही जाएगा जिसका कहीं ना कहीं इससे लिंक होगा। तो थोड़ा सा इसमें एक्सपेंड तो करना पड़ता है, यू हैव टू थिंक ब्रॉडली, यू हैव टू प्लेस ऑल द ऑप्शंस ऑन योर टेबल, एंड देन यू हैव टू जस्ट कंपेयर द थिंग्स। तो ऑप्शन एलिमिनेशन यहाँ पर अच्छा टूल है। बाकी दूसरा एक अप्रोच ये भी है कि आप क्या करिए, अगर यू यू हैव अ पैसेज, ठीक है, अगर आपके पास पैसेज है, समटाइम्स इट इट विल गिव यू द पैसेज, और उस पैसेज के अंदर से आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछेगा। तो उस पैसेज के अंदर से यदि पूछ रहा है, तो आप उस पैसेज की लाइंस को पढ़ो। तो जैसे ही आप 2-3 लाइंस पढ़ोगे ना, कविशा इज एंटरिंग, कविशा, ओके। तो जैसे ही भी आप उस पैसेज की लाइंस को पढ़ोगे ना, सपोज आपने 2-3 लाइंस पढ़ी, तो 2-3 लाइंस पढ़ने के बाद ही आपको ऐसा फील होने लगेगा उसको, मतलब आपको वहाँ आइडिया मिलेगा। तो आपको यदि एग्जैक्टली सिनोनिम्स या एंटोनिम्स किसी का मीनिंग नहीं पता है, तो आप जस्ट रीड द टेक्स्ट, एंड द टेक्स्ट विल गिव यू सम सेंस ऑफ द ऑप्शंस, ठीक है, कुछ आइडियाज वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज मेक अ हैबिट, एक ये तो आपको करनी चाहिए, दैट मेक अ हैबिट टू लर्न एटलीस्ट 5 डिफरेंट synonyms or 5 different antonyms, okay, not only for this examination but in the future examination as well. So try to make the habit that you people can already learn the sometimes, है ना, word of the day something हम लोग करते भी हैं चीजें, ठीक है। तो आई थिंक खुशी, ये आपका जो क्वेश्चन था, आई हैव आंसर्ड। एंड और ये खुशी का ही आंसर नहीं, मतलब ये कई सारे लोगों का क्वेरी हो सकती थी, ठीक है। तो बाकी देखिए, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यू पीपल आर फ्री टू आस्क, ओके, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। देन हम लोग क्या देखें, पेयरिंग ऑफ द वर्ड्स, और देन सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, prepositions, okay, completion of the sentence। तो ये this is the all about the syllabus that we can discuss, but let's see the question paper and pattern, okay, what are the different ways, let's see। So this is the question paper of 2015-16, and I also have the 16 and 17, okay, I have 2 question papers, and we will solve it, and frequently you have to just participate in this talk, and you have to give the answers, all the possible answers you have to give, okay। So let's see the question number 15 and 16। देखिए आपके पास total there are 25 questions, okay, there are 25 questions which I can see, ठीक है। मेरे पास 14, 15-16 और 16-17 का पेपर जो है, उसमें आपको 25 क्वेश्चंस गिवन है, और
आई एक्सपेक्ट कि अभी बात वाला एग्जाम है उसमें भी आपके यही क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आप इसमें ना क्या करिए, लेट्स सी, इसको हम देखते हैं जल्दी से। ओके, तो आप लोग आंसर्स करना स्टार्ट करिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। दिस इज द पेपर 2015-16, ठीक है। पहले सवाल का आंसर क्या बनेगा बताइए। ओके, कुमुद इज ऑन द वे। सजल, बी, everyone is saying B. Here is नंदिका। नंदिका सो रही हूँ आप कल हैं, कल सो रही थी आप। नंदिका शगुन, ओके ओके ओके। खुशी सिंह सी। फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ओके। आई एम क्वेश्चन वन, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। खुशी सिंह सी and most of the people are giving B option. Sleep is dash life, a must of, necessary to life, necessary of life, importance of, है ना। So necessary, where is Nandika? Nandika ने आंसर दिया है क्या? ना ना, some students are not respecting the class, ठीक है चलिए। So its correct answer is necessary to, ठीक है। Sleep is necessary to life. नेसेसरी ऑफ लाइफ नहीं कहेंगे, ठीक है। नेसेसरी ऑफ लाइफ नहीं आएगा ये ऑप्शन सी, खुशी, ठीक है। दिस इज द नेसेसरी टू, स्लीप इज नेसेसरी टू लाइफ, ओके। सोना भी आपके लिए, जीवन के लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। सेकंड क्वेश्चन, वी ट्रेवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस डैश अ कार, ओके। तो बाई, सी, डी, सी, C and D. If people are giving C and D. Okay. So second का option is by, ठीक है। By is the correct option. We traveled a long distance by a car, है ना। इसमें आप लोग can anyone can respond that what is the parameter by which we say that this is the on or by, why we are not using here on, okay, why we are not using here on a car या with a car। अच्छा, अगर होता हम लोग फुट, सपोज पैदल चलने को कह रहे हैं, ठीक है। वी ट्रेवल ऑन फुट, सो ऑन फीट, ओके। सो हाउ यू, विच इज द प्रॉपर, you know and article, preposition, you can say preposition, right? So which is the correct one? Why we are not using here on? Yes, anyone? Its correct answer is by a car, ठीक है। कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या पता नहीं है या यू आर नॉट रेस्पॉन्डिंग। चलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। यदि मेनली टू फुट्स की बात है ना, 2 फीट्स है ना, आप यदि पैरों पे बात करते हो तो ऑन यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर बोलते हैं कि यदि आपके पास कोई 2 या 2 से ज्यादा व्हील्स वाला वो है, देन यू शुड यूज अ बाई, है ना। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओके। सेकंड कंप्लीटेड, थर्ड क्वेश्चन। वी सेट डैश वेरी अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। We set off very early to avoid the traffic. People are responding D. Okay, we set off very early to avoid the traffic. Okay. ध्रुव, इसका आंसर ना बेटा ऑन नहीं आएगा, ठीक है। देखो ऑन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, ऑन ऑन का यूज मेनली आप किसी चीज के, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, द कैट इज ऑन द टेबल, समटाइम्स यू से। ऑन का यूज मेनली हम लोग ऊपर के लिए वैसे करते हैं ना ऑन, बट ऑफ यहाँ पर आएगा, ठीक है। नंदिका, ओके नंदिका, ओके ओके, नो इश्यूज, ठीक है।
ओके ध्रुव, तो यहाँ पर ना ऑफ आएगा, राइट। ओ डबल एफ ऑफ है ना, ये वाला ऑफ भी नहीं आएगा ना। वी सेट ऑफ वेरी अर्ली टू अवॉइड द ट्रैफिक। व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस ऑफ, व्हाई ऑप्शन ए इज नॉट देयर? somebody please response, and next let's move to the next question number 4. One whose name is not known is, जिसका नाम नहीं पता होता उसको क्या कहते हैं, है ना। नाम नहीं पता उसका, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस बी, एनोनिमस। ओके, Nandika is also saying B. Okay. So option B is the correct option, anonymous. ठीक है. And what is the ambiguous? Okay, you are ambiguous in the something. Confusion state वाली है ना. That is the case of the confusion state. Okay, you are ambiguous. You are confused. Anonymous. Okay, when I was in the offline classes, the most challenging thing is to remember the student's name. है ना. You people saw, है ना. I learned out some students' name after some days, okay? But now in the class Zoom meeting, I can learn everyone names, okay? That's a good thing. Anonymous, okay? The meaning of the feeble is, next question, let's do the frequently. The meaning of feeble is, okay? Pramod is saying A, D, multiple options are there. Sajal is saying A, okay? Nandika is saying A, okay. ठीक है, ठीक है, ये जिसने पढ़ा है ऑफलाइन स्टूडेंट्स उनका, वीक इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। द मीनिंग ऑफ फीबल इज करेक्ट। द मीनिंग ऑफ फीबल इज, अब देखो यहाँ पर, अभी जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव जस्ट गेव यू द ऑप्शन, है ना। अभी वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, खुशी आपने पूछा था ना, तो फीबल ऐसे ना, फीबल, तो आप देखो यहाँ पर, यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द फीबल सपोज, ठीक है, but you can expect, you can play with the options, okay, weak, strong, powerful, gentle। तो देखो स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, है ना, दोनों में स्ट्रेंथ दिख रही है। जेंटल भी, अगर कोई बंदा जेंटल है, इट मींस ही हैविंग सम गट्स इन ओके, जेंटलमैन, ओके, सम। सो वीक इज अ, वो, सो मीनिंग ऑफ द फीबल इज वीक, ठीक है, बिकॉज ऑल दीज थ्री यू कैन से दैट दीज थ्री आर गिविंग यू द similar meaning, so that's how you can play with the options. If you don't know the meaning of the fable, then just go with that trick, okay? Now let's see the question number 6. Mark the option which is the closest in the meaning to the underlined word. He is very fastidious about how he manages his movie collection. Now, there are some boys who have the, earlier days when I was in the class 12th and 10th, people have the, my friends have some kind of the thing that, okay, I have a good collection of the movies. Do you want the movies? Because that time YouTube was not so much popular. He's very fastidious about how he manages his movie collection. So options, you people are saying A option, Finkley, unfuzzy, arrogant, ignore, okay, okay. Anyone else? Fineke, yes, he is very fastidious about how he manages his movie collection. Someone will tell me the meaning of this word, Fineke. What is this meaning? Fastidious, what does this meaning? कुछ लोग होते हैं ना, उनको कलेक्शन करना बहुत अच्छा लगता है, और मेरे पास ना बहुत पुरानी पुरानी मूवीज हैं या फिर बहुत चीजें हैं। एनीवन नोज द मीनिंग, या फिर बस आपने और वही और किया है, ऑप्शंस एलिमिनेट किए हैं? पीपल आर, रेस्पॉन्स किया करो ना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर, ओके। एलिमिनेट, खुशी इज सेइंग एलिमिनेट। अच्छा, ऑप्शन एलिमिनेट किया, वेरी गुड, गुड गुड गुड। एरोगेंट, इग्नोरेंट, है ना, अनफजी, फेस्टिडियस, फिनिकी, ठीक है, गुड। आंसर सही आ गया, ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। बुलक, बुलक हेफर, बुलक काउ, बुलक हेफर, नन।
A या C, okay. Others. Buck, heifer, none. What is saying B? Whenever I see that question, as per my way, the option is B. Okay, bullock with cow, है ना, goat, cow के साथ वो. But ये combination गलत है. Seventh, A option is the correct. ठीक है. Most of the people are giving the B option, but option A is correct. What is the meaning of heifer? Hmm? Anyone? नाम सुने हैं आपने? गाय, गाय के क्या होती है? बच्चिया होती है, बच्चिया. बच्चिया, गाय का जो बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं? है ना, बच्चिया बोलते हैं, बच्चिया. तो हेफर का, हेफर वही है. ठीक है, हेफर यहाँ पर वही है. करेक्ट पेयर, बुलक के साथ हेफर यूज किया जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. I have not seen him. Okay, Friday last. So what is this? This is the preposition. Okay, you have to just use the preposition word. So what is the possible options? From, by, since, over. I have not seen him. Dash Friday last. मैंने उसे Friday last से नहीं देखा ना. From, from last Friday. Okay. Since, some. Okay. Okay. Others. Since last Friday. Okay. Eighth option. सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सिंस. ठीक है, सिंस लास्ट फ्राइडे आ जाएगा. ठीक है, सिंस याद रखना. लास्ट फ्राइडे अगर आ रहा है तो ये फ्राइडे लास्ट है ना. टू सेंड ऑन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ कंट्री. व्हाई द नंदिका इज नॉट रेस्पॉन्डिंग? नंदिका, इंटरनेट इश्यूज कैसे हैं भाई? टू सेंड एन अनवांटेड पर्सन आउट ऑफ द कंट्री इज टू. सजल का भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है. आ रहा है सजल का तो. ओके. टू सेंड एन unwanted person out of the country is to deport, exclude, expatriate, ostracize, ostracize. Prabhat is saying A, Sajal is saying A, Khushi is saying C. ये खुशी, आप एक क्लास में आई थी ना? एक क्लास में आप आई थी, है ना? आप ऑफलाइन में एक क्लास में आई थी ना, शायद, जहां तक मुझे. नहीं सर, मैं एक भी नहीं ली. मैंने एक भी नहीं ली. अच्छा अच्छा, आपने नहीं ली. ठीक है, आना चाहिए था. ठीक है, ट्राई टू यूज इट, है ना. ये रेस्पॉन्स कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगा. कोई बात नहीं, आपके मोस्टली आंसर्स आपके भी अच्छे हैं, बट दीज पीपल आर डूइंग गुड. ऑफलाइन स्टूडेंट्स ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं. आंसर सही है इनके मोस्टली. 9th A. ओके गाइस. 10th C. सॉरी. 10th क्वेश्चन C. Let's see the question number 10th. Okay, let's see. A thing that is not eatable is unedible, undelible, inedible, and ineatable. Okay. Why you people are giving the C? I was saying let's see. I am not saying that 10th option C. ठीक है. Inedible. A thing that is not eatable, है ना. कोई ऐसी चीज जो कि eatable नहीं है, तो that is the inedible. Inedible. Okay. Unedible word नहीं है. Inedible भी नहीं, eatable भी नहीं. Okay. All right, C option is the correct one. Let's move to the next question. The suffix used for these all are the previous year questions. Okay.
These all are the previous year questions. The suffix used for song should be. Song के लिए क्या suffix use कर सकते हैं? Stir. Suffix and prefix. What are the suffix and prefix? Prefix are words which are used for पहले जो लगाते हैं, ठीक है? पहले जो लगाते हैं आप अपने नाम के आगे जो पहले लगाते हो, मिस्टर मिसेस वॉट एवर, ठीक है? और प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इज आफ्टर योर नेम, ओके? फॉर एग्जांपल कुमुद, वॉट एवर सरनेम कुमुद विल यूज, ठीक है? तो दैट इज द सफिक्स. प्रीफिक्स दैट वन, ओके? सो लेट्स सी what is the option. Okay guys, we have the 10 minutes. We have the 10 minutes, okay? Frequently we will do the things. A option, A option, A option, C, A, C. Okay. Yes, yes, yes. A, good, good, good. Pramod ने कहा C, A, very good. A option is the correct one. Okay. Suffix used for song. Ester. For ester क्यों use किया है बताओ? Suffix इसके लिए क्या use किया है बताओ? कोई एग्जांपल देना. Suffix used for song. How you get your answer? Song के साथ STER क्यों लगाया आपने? रीजन कोई नहीं दे रहा है ना? रीजन कोई नहीं दे रहा है. Why you are not giving the reasons? Let's see next question number. He traveled 1000 miles dash 4 hours by in at from. Okay, 1000 miles. Pilar saying नहीं बेटा, इन आएगा ये इन, ठीक है? यस, ये ध्रुव इन आएगा. क्लास में एब्सेंट होते हो, ऑफलाइन में भी है ना? इन आएगा, ठीक है? इन 4 hours, ठीक है? इन 4 hours. ही ट्रेवल्ड 1000 miles. उसने 1000 मील चल दिया कितने घंटों में? 4 घंटों में ना. इन. When grandfather arrived, we coffee. Let's see question number 13th. 13th पर आ जाइए. When grandfather arrived, we have a coffee. We have coffee. We has coffee. We was having coffee. We were having coffee. D. Yes, we were having. Okay, option number D is the correct one. When grandfather arrived, है ना? ये आपका कौन सा बन रहा है? Perfect, है ना? Present perfect. You can say we were having coffee. दादाजी आए तो हम कॉफी पी रहे थे. अच्छा. Mr. Singh, I spoke is interested in our plan. Mr. Singh dash I spoke is interested in our plan. To which? Mr. Singh to which? About which? Who? To whom? देखिए कॉमा भी लग रहा है यहाँ. कॉमा भी याद रखा करो, ठीक है? बी रिमेंबर द कॉमा. कॉमा इज ऑल्सो. मिस्टर सिंह के बाद कॉमा आ रहा है. मिस्टर सिंह टू विच आई स्पोक, है ना? या फिर अबाउट विच इज इंटरेस्टिंग इन आवर प्लान. टू होम. ओके ओके, 2 people have responded. To whom आएगा, ठीक है? To whom? मिस्टर सिंह टू whom I spoke is interested in our plan. ठीक है? मिस्टर सिंह जो जिनसे हम बात कर रहे हैं, they are interested in our plan. Let's do some planning, है ना? The key dash success is hard work. ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है ना? ये वाला मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है. 15th of is the key. आपने सुना भी है ना? The key टू सक्सेस. टू सक्सेस नहीं आएगा ना? TWO नहीं आएगा.
द की टू सक्सेस इज हार्ड वर्क, है ना, सक्सेस इज हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, ऐसे भी बोलते हैं। ओके, सो 15th शुड बी द सी। ओके, लेट्स सी द 16th। Let's see the 16th. He is too impatient for tolerating and by delay. तो गाइज अभी देखिए आप लोग, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आंसर्स हम लोग अब आपको आई विल शेयर, ठीक है, बट लेट्स सी व्हाट आई हैव इन द कंटेंट। So I have the question BCom 2016-17 question paper. Okay, so you guys can solve it. If you need it, I will share the PDF of it. Okay, with the answers, so you can solve. So there is a game of the 25 questions. Okay, so 25 questions you have to solve and within a particular time. Okay, and we also discussed about the syllabus, what can be the syllabus. So I hope you people can do it the good things. Then, if anyone have some any kind of the queries regarding the paper pattern, regarding the question syllabus, whatever, and if you are facing any difficulties in any topics, then you people can ask in remaining 3 minutes. Okay. Yes, anyone? All okay? Okay, GK में कोई important topic? हाँ, GK के regarding I can help you. Okay. GK के regarding I can help you. You do the message to me. Okay. And I will share some good things. GK easy है ना, मैं I also share some with my students the GK current affairs and some important topics. I will share with you, okay? And others, anyone? Sajal, बढ़िया चल रही है प्रिपरेशन आप लोग का? नंदिका, खुशी, शगुन और थे इसमें, शगुन नाम, all good. I wish you people do good things. और कल हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये एक अच्छा आपके लिए पूरा रिवीजन हो गया। सो ओके, आपको बिल्कुल यू विल बी फेमिलियर विद द टाइप ऑफ द पैटर्न। अच्छा ही रहेगा आपका एग्जाम, एंड आई विश आप लोग एएमयू में तो एंट्री मार ही लो अच्छे से, ठीक है। आई रियली फ्रॉम माई हार्ट आई विश दैट यू पीपल विल गो इनटू द एएमयू। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो, एंड एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, ओके, यू कैन आस्क विद मी। और इसका पीडीएफ बता देना, आई विल शेयर, ओके, सो दैट यू कैन डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, सभी चीज़ों का इसका प्रैक्टिस जरूर कर लेना। लास्ट 1 मिनट इज देयर, और उसमें अगर चाहो तो आप लोग, ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस का गेम है सिर्फ, है ना, और इसमें प्रपोजिशंस वगैरह को एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है, ध्रुव, प्रपोजिशंस में देख लेना कि यूजेस कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इन और इन टू का यूज बहुत पूछा जाता है, ठीक है, ऑन का और बाई का यूज बहुत पूछा जाता है, वेयर यू वी शुड यूज द ऑन, वेयर वी शुड यूज द बाई, ठीक है, उस चीज को देख लेना। ओके, और कल जैसे कि हमने पढ़ा था डिफरेंट फ्रेजेस, क्लॉजेस, ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, ठीक है, इस टाइप से चीजें देख लेना। और बाकी द थिंग्स आर, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, कंप्लीशन ऑफ द सेंटेंस, पेयरिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन,
और ग्रामर जितना याद हो खुशी आप ये लर्न करो, है ना। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के मैंने कुछ वो भी शेयर किया था, ठीक है, इन लोग को। तो वो मोस्टली मोस्ट प्रोबेबल वही होते हैं, तो उनको आप जरूर याद रखो, ठीक है। वो अदरवाइज पैसेज में से आएगा तो यू कैन आइडेंटिफाई, ठीक है, पैसेज से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। कल का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा वेयर आई विल टॉक अबाउट सम एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस, ठीक है, एंड डायरेक्ट। तो कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। वैसे आई हैव वन मोर पीडीएफ फॉर यू, तो आप लोग बता देना इफ यू गाइस नीड दैट होमवर्क, देन आई विल शेयर इट, ठीक है, and try to do that thing as well. Okay, guys, so now the meeting will be left. Okay, you can